हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 4 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे फॉर ईयर 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2024 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। Second, critical minds, media's role in advancing peaceful, just and inclusive societies. And third, a press for the planet, journalism in the face of the environmental crisis or journalism under digital sale. आपको बताना है कि इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस वर्ष का जो थीम है वो है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। आप यहाँ देख सकते हैं। So World Press Freedom Day is observed on the 3rd May every year, and this day was proclaimed by the United Nations General Assembly in December 1993, following the recommendations of the UNESCO's General Conference. So it is an opportunity to celebrate the fundamental principles of the press freedom, to assess the state of the press freedom throughout the world, to defend the media from attacks in their independence, and also to pay tribute to the journalists who have lost their life in the line of duty. इसके साथ ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग है 159। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 161 रही थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, सेकंड डेनमार्क और थर्ड है स्वीडन। और इसमें जो बॉटम में कंट्री है वो है इरिट्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements, consider the following statements and choose the correct statement। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। So the Reserve Bank of India has recovered 97.76% of the 2000 notes in circulation, and the 2000 banknotes are still considered as legal tender। आपसे यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। So as per the new update from RBI, 97.76% of the 2000 currency note in circulation have returned to the banking system, and only 7,961 crore worth of the withdrawn notes are still in the public. So as per the RBI, the total value of 2000 bank notes in circulation has declined from rupees 3.56 lakh crore in May 2023 to just 7,961 crore as of 30th April 2024। So 2000 के नोट्स की बात करें तो ये अभी भी लीगल टेंडर कंसीडर किए जाते हैं। इफ द रिसीविंग पार्टी एक्सेप्ट्स देन इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन। इसके साथ ही आरबीआई की बात करें जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इट इज द इंडियाज सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, and it is owned by the Ministry of Finance under the Government of India. So RBI is responsible for the control, issue and maintaining supply of the Indian rupee, and it also manages country's main payment system and works to promote its economic development. So इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So with which country has India conducted a joint security drill in New Delhi in May 2024? आपसे पूछा जा रहा है मई 2024 में भारत ने किस देश के साथ दिल्ली में संयुक्त रक्षा अभ्यास
आयोजित किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस या फिर इजराइल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो ड्रिल कंडक्ट की गई है वो इंडिया और इजराइल के मध्य कंडक्ट हुई है नई दिल्ली में। आप यहाँ देख सकते हैं। So India has conducted a joint security drill in Delhi with Israel, and the drill aimed to assess the readiness of security personnel to counter potential future threats. So it involved a collaboration between the Israeli embassy and Indian security forces, including Union Home Ministry, Delhi Police, National Security Guards, and local emergency services. So the exercise provided a platform for both the forces, Israeli and Indian, to refine their coordination, communication, and operational procedures in countering terrorism. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंटार्कटिक ट्रेडी। यहाँ पर अंटार्कटिक संधि के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। So first statement है, it was signed in 1962 and came into force in 1965. Second, the treaty has 113 parties from all the continents. And third, India signed the treaty and received the consultative party status in 1983. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि आर्कटिक संधि से संबंधित यहाँ पर कौन से कथन गलत हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है जबकि थर्ड करेक्ट है। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया है 1983 में। आप यहाँ देख सकते हैं। सो अंटार्कटिक ट्रीटी वो साइंड इन 1959 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1961। और टोटल नंबर ऑफ पार्टीज की बात करें तो वो हैं 56। So India signed the treaty and received the consultative party status in 1983, and India enacted Indian Antarctic Act 2022, reaffirming its commitment to the Antarctic Treaty. अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है बिकॉज इंडिया इज सेट टू होस्ट द प्रेस्टिजियस 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting, and the meeting will be organized by the National Center for Polar and Ocean Research under the Ministry of Earth Sciences. और इस मीटिंग का आयोजन कोची केरला में किया जाएगा। सो अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करें तो इट इज also known as Antarctic Treaty System, and it regulates international relations with respect to Antarctica, जो कि अर्थ का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। एंड इट वाज द फर्स्ट आर्म कंट्रोल अग्रीमेंट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। सो अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम की बात करें तो आपने देखा इसको साइन किया गया था 1959 में, बट ये इफेक्टिव हुआ है 1961 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the presiding officer of the Securities Appellate Tribunal? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है मीरा स्वरूप, धीरज भटनागर, दिनेश कुमार या फिर जेपी देवधर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो दिनेश कुमार को हाल ही में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का नया पीठासीन अधिकारी चुना गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो जस्टिस दिनेश कुमार, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट, हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो सैट की बात करें, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द सेवीज एक्ट 1992 एंड इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स फ्रॉम फाइनेंशियल रेगुलेटर्स लाइक सेबी, PFRDA and IRDA, aiming to streamline appeals processes outside of the High Court. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Recently, the Indian Army and the Puneet Balan Group collaborated to open India's first Constitution Park in which city of India? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, पुणे, जयपुर या फिर वाराणसी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है भारत का पहला वो बनेगा पुणे में, आप यहाँ देख सकते हैं। सो द इंडियन आर्मी एंड द पुनीत बालन ग्रुप जॉइंट हैंड्स टू इनॉग्रेट Constitution Park in Pune. So Lieutenant General Ajay Kumar Singh led the ceremony, stressing citizens' constitutional duties for India's progress by 2047. And he also highlighted the global importance of the Indian Constitution, which secures fundamental rights and underscores fundamental duties. So understanding these rights and responsibilities is vital for India's development. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the personality from Asia who has recently won the 35th Goldman Environmental Prize. आपसे पूछा जा रहा है एशिया के उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 35वां गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या जिन्होंने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है। आपके ऑप्शंस हैं टेरेसा विंसेंट, मार्सेल गोम्स, जादव पायेंग या फिर आलोक शुक्ला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इस वर्ष गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं आलोक शुक्ला, आप यहाँ देख सकते हैं। Goldman Environmental Foundation announced the winners of the 35th Goldman Environmental Prize, which is also known as Green Nobel Prize. So, Alok Shukla, convener of the Chhattisgarh Bachao Andolan and founding member of the Hasdev Aranya Bachao Sangharsh Samiti, won the 2024 Goldman Prize from Asia for his efforts to save the forests of the Hasdev Aranya in Chhattisgarh. So in 2024, award was presented to the 7 individuals committed to protecting their communities and environment. So आलोक शुक्ला की बात करें तो ये 43-year-old environmental activist हैं छत्तीसगढ़ के जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। And Shukla has led a successful grassroots campaign to protect 4,45,000 acres of the biodiversity-rich Hasdev Aranya forest from the development of 21 proposed coal mines. So अब ध्यान रखेंगे कि आलोक शुक्ला का संबंध है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से और इनको इस वर्ष के गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज से सम्मानित किया गया है। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.